Good morning, students. Good morning, ma'am. Today our topic is elasticity of demand. That is chapter 5th. It is elasticity of demand. As you know, we study about the law of demand in previous chapter. Law of demand states that when other things remain constant, the price of any commodity increases, the quantity demand decreases. The price of any commodity decreases, the quantity demand increases. So law of demand states that there is a inverse relation between the price of the commodity and quantity demanded. But we cannot measure the change in quantity according to the change in price with the help of law of demand. यानी law of demand हमें ये तो बताता है कि कीमत और मांग में विपरीत संबंध है. अगर कीमतें बढ़ती हैं तो मांग की मात्रा कम हो जाती है और यदि कीमतें घटती हैं तो मांग की मात्रा ज़्यादा हो जाती है. यानी चेंज को तो बताते हैं, पर कितना चेंज, कितनी कीमत के बदलने से कितना चेंज हुआ, इट कैन नॉट बी मेजर विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. So we study about the elasticity of demand. Elasticity of demand measures the change in quantity demand according to the change in the price of the commodity. यानी जो elasticity of demand का concept है वो चेंज को मेजर करता है कि कीमतों में परिवर्तन से मांग की मात्रा में कितना परिवर्तन हुआ. तो यदि हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो व्हेन अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, when other things remain constant, the percentage and proportional change in quantity demanded according to the percentage and proportional change in the price of the commodity. This is known as elasticity of demand. क्या बन गया डेफिनेशन आपका? When other things remain constant. Other things remain constant. The percentage and proportional change in quantity demanded according to the change in price of the commodity. So it is clear the elasticity of demand measured the percentage or proportional change in quantity demand according to the percentage or proportional change in the price of the commodity. अगर हम फॉर्मूला लिखेंगे तो elasticity of demand equals to percentage or proportional change in quantity demanded upon percentage and proportional change in price of the commodity. Clear? Definition clear हो गई? The elasticity of demand measure the percentage and proportional change in quantity demanded according to the percentage or proportional change in the price of the commodity. अगर हम इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला निकालेंगे तो देखेंगे elasticity of demand equals to percentage change यानी change in Q upon Q. ठीक है, प्राइस में change in P upon P. तो इसको करेंगे तो हम change in Q upon change in P into P upon Q. ओके, ये क्या हो गया हमारा elasticity of demand का फॉर्मूला हो गया. सो इट इज क्लियर. elasticity of demand का मीनिंग क्लियर हो गया आपको? Yes.
कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? No, ma'am. आगे बताऊं? ओके Yes, ma'am. आगे देखिए, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी of demand. So there are three types of. First is price elasticity of demand. First is price elasticity of demand. Second is income elasticity. Income elasticity of demand. और थर्ड है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ठीक है, फर्स्ट हम बात करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. एज यू स्टडी अर्लियर, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑल्सो नोन एज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. व्हेन वी मेजर द परसेंटेज और प्रोपोर्शनल चेंज in quantity demanded according to the percentage and proportional change in the price of the commodity. यानी जब हम प्राइस ऑफ कॉमोडिटी के अकॉर्डिंग ही क्वांटिटी में चेंज को मेजर करते हैं तो दैट इज नॉन एज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सो द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज एज यूजुअल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ये क्लियर हो गया? फर्स्ट वाला फॉर्मूला भी सेम चलेगा. Yes, ma'am. सेकेंड है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. यहां क्या हो जाएगा, इनकम को लेंगे, यहां इनकम का इफेक्ट किस पे देखेंगे, डिमांड पर. ठीक है, तो व्हेन अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट द परसेंटेज एंड प्रोपोर्शनल चेंज इन डिमांड ऑफ एनी कमोडिटी अकॉर्डिंग टू द इनकम ऑफ द परसेंटेज और प्रोपोर्शनल चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर. वेयर जब हमने यहाँ पर प्राइस यूज किया तो हमने क्या यूज किया, वी जस्ट यूज द क्वांटिटी डिमांडेड. व्हेन वी यूज द इनकम कंज्यूमर देन वी यूज द वर्ड डिमांड. इज इट क्लियर? क्यों है ऐसा? बिकॉज ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और चेंज इन डिमांड. याद आ रहा है? इज इट रिमेंबर? Yes, ma'am. Okay, when we use the price word, so we have to use quantity demand. When we use the consumer's income, we use the whole demand. Okay, Yes, ma'am. so the definition of income elasticity of demand is when other things remain constant. यहाँ पर other things कौन सी हो गई, price. When price is constant, ठीक है, due to the change in, किसमें चेंज आया, इनकम, कंज्यूमर की इनकम से. अगर डिमांड चेंज हो जाती है दैट इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सो व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट द परसेंटेज एंड प्रोपोर्शनल चेंज इन डिमांड अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज एंड प्रोपोर्शनल चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर. ठीक है, वहां क्या था, अदर थिंग्स रिमेन्स थी और यहां क्या हो जाएगा, प्राइस रिमेन कांस्टेंट. ओके, Yes, ma'am. अगर हम फॉर्मूले की बात करेंगे तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अकॉर्डिंग टू इनकम आपकी जो है, तो चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी लिखते तो यहां हो जाएगा चेंज इन आई इंटू आई अपॉन पी. ओके, Into आएगा I upon. आई क्या है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, आई अपॉन क्यू. इनकम ऑफ द, आई क्या है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इसलिए हमने यहाँ पे आई लिया पी की जगह, तो आई अपॉन क्यू. क्लियर? Yes, ma'am. यहां तक समझ में आ गया? Yes, ma'am. ठीक है, अब हम बात करते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. क्रॉस मतलब ये सिंबल जो होता है. ठीक है, क्रॉस मतलब व्हेन अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट the percentage and proportional change in quantity of x commodity. अगर हम क्रॉस इलास्टिसिटी की बात करते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो यहां क्या हो जाएगा, when other things remain constant, other things remain constant.
percentage and proportional change in quantity in X commodity according to the change according to the percentage and proportional change in the price of commodity Y. ठीक है. In price elasticity of demand we have seen कि we have taken the quantity of X and taken the price of X also. In cross elasticity of demand हम क्या कर रहे हैं, एक की कीमत और एक की डिमांड ले रहे हैं. यहाँ क्या देख रहे हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ कॉमोडिटी X. X की कॉमोडिटी में चेंज हुआ, किसके कारण हुआ, Y की प्राइस के कारण. So when other things remain constant, the percentage and proportional change in quantity demanded of commodity X according to the change, percentage or proportional change in the price of commodity Y. So that is cross elasticity of demand. कहाँ पर होता है ऐसा? In which goods cross elasticity of demands? Substitutional goods. Very good. That will be in substitute goods or in कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, क्योंकि ये वो गुड्स है जहां एक की कीमत का भाव दूसरी वस्तु की मांग पर पड़ता है. क्लियर? ठीक है. अगर हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एक्स वाई इक्वल्स टू परसेंटेज और प्रोपोर्शनल चेंज in quantity of X commodity upon percentage and proportional change in price of Y commodity. ठीक है. यहां प्राइस किसकी चेंज है, Y कॉमोडिटी की प्राइस चेंज है. ठीक है. फॉर्मूला बनाएंगे तो ई डी एक्स वाई इक्वल्स टू चेंज इन क्यू. क्वांटिटी किसकी ली है हमने, किसकी क्वांटिटी ली है, एक्स की, एंड प्राइस चेंज इन प्राइस वाई. ओके. इनटू प्राइस ऑफ वाई अपॉन क्वांटिटी ऑफ एक्स. यस मैम. ठीक है. So there are three types of elasticity of demand. कितने तरह की हो गई, three types of elasticity of demand. Price elasticity of demand, where we notice the change in quantity demand according to the change in price of the commodity. The second one is income elasticity of demand, where we just notice the change in quantity, where we notice change in quantity demand according to the change in the कंज्यूमर्स इनकम. यहाँ हम क्वांटिटी नहीं क्या लेंगे, होल द डिमांड अकॉर्डिंग टू द चेंज ऑफ द इनकम. वहाँ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट. इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हियर प्राइस विल बी कांस्टेंट. ठीक है. और इन क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हियर वी जस्ट नोटिस द चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स कॉमोडिटी अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी वाई. यहाँ एक की प्राइस है और एक की कीमत पर इफेक्ट देखा जा रहा है. हाँ, एक बार प्राइस इलास्टिसिटी बता दो, मैं आई नहीं पूछ सकती. अच्छा आप लेट हो गए थे. यस मैम. एक मिनट. यहाँ तक तो क्लियर हो गया. दोबारा देख लीजिए, आपको मैं दोबारा बता देती हूँ. हम बात करें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. प्राइस
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डेफिनेशन देखेंगे, व्हेन अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। When other things remain constant, percentage and proportional change in quantity demanded according to the change in according to the percentage and proportional change in price of commodity Y, price of commodity। ठीक है, यहां क्या हो गया, when other things remain constant, which other things which are studied earlier in the law of demand, when other things remain constant, percentage and proportional change in quantity demand, कितना चेंज हुआ, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज एंड प्रोपोर्शनल चेंज इन द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी। ठीक है, इसका फॉर्मूला देखेंगे तो ED इक्वल्स टू चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P इंटू P अपॉन Q। ओके, ये डेल्टा Q है जो बताता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, डेल्टा P बता रहा है चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, समझ में आ रहा है। P क्या है यहां पर, इनिशियल प्राइस, और Q है आपका इनिशियल क्वांटिटी। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? No. आप समझ में आ गया कनिका? Yes, ma'am. हाँ वो, हाँ तो इतनी माइजर भी तो होता है, जब भी तो करती है, जैसे, मतलब उसको इनकम भी इंक्रीज हो उसकी, हाँ और है ना मतलब प्राइस भी डिक्रीज हो, तो भी वो नहीं खरीदता क्योंकि माइजरनेस की वजह से। दैट इज, वो क्या हो गए, एक्सेप्शंस, दैट इज एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, है ना। Yes, ma'am. These are known as exception. We are just talking about the law of demand. The elasticity of demand is just belongs to the law of demand. तो we don't, यहाँ पे हम exceptions की बात नहीं करेंगे, okay? Yes, ma'am. नहीं तो फिर future expectations भी हैं, बहुत सारी चीजें और आ जाएंगी, तो हम यहाँ पर exceptions की बात नहीं कर रहे अभी, okay? जी मैम। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? Yes, ma'am. ओके, इनकम इलास्टिसिटी समझ में आ गया कनिका? Yes, ma'am. क्रॉस इलास्टिसिटी समझ में आ गया? Yes, ma'am. यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? No, ma'am. अब देखिए, ये जो आपका फॉर्मूला है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इस पर एक न्यूमेरिकल बनता है, ठीक है ना, बोर्ड में आता है। हाँ पूछो मैम, इनकम इलास्टिसिटी समझा दीजिए मेरे को। हाँ, प्राइस इलास्टिसिटी समझ में आ गया। अब देखिए Yes. इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब देखिए इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में मतलब क्या हो गया, व्हेन अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, यहां क्या हो जाएगा, व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी कांस्टेंट है, यहां पर प्राइस क्या हो गई, कांस्टेंट। द परसेंटेज एंड
मैम हाँ इस लॉ मतलब वेलोसिटी में हम केवल प्राइस और इनकम को ही लेंगे और एक्सेप्ट नहीं लेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाँ पॉपुलेशन। सब आएगा, सब आएगा। तो फिर तो इनकम में भी तो ये इफेक्ट करती है ना प्राइस के अलावा, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। हाँ अगर आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं व्हेन अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, ये भी सही है। अगर आप ये लिखें तो भी सही है, व्हेन अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, आप ऐसा भी लिख सकते हैं व्हेन अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, ये तो मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपको वो ध्यान आ जाए कि when we talking about the other things we just take price constant, when just talking about the price we take other thing as constant। ठीक है, जी मैम। तो हम ये भी ले सकते हैं क्योंकि डेफिनेट आप कह रहे हैं कि इनकम अगर इफेक्ट कर रही है तो अदर फैक्टर भी तो इफेक्टेड करते हैं, तो ठीक है उसमें, लेकिन उसमें इंक्लूडेड क्या हो जाएगा, प्राइस यहाँ पर इंक्लूड होगी। यहाँ पे हम प्राइसेस को क्या रखेंगे, अदर थिंग रिमेन में कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, जी मैम। ओके। Yes, ma'am. परसेंटेज एंड proportional change in demand according to the percentage and proportional change in income of the consumer। ठीक है, यहां हमने क्या लिया, डिमांड ली तो क्या लिया, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अगर प्राइस लेते तो क्वांटिटी डिमांड लेते। ओके, अब इसका फॉर्मूला बन जाएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम डिमांड है तो चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी की जगह क्या हो जाएगा, आई फाइल इंटू क्या हो जाएगा, आई अपॉन क्यू। Q. ठीक है, यही डेल्टा क्यू का मतलब क्या हो गया, चेंज इन डिमांड, चेंज इन आई का मतलब, डेल्टा आई का मतलब चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर आपका आई हो गया इनिशियल, आप इनिशियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर और आपका क्यू हो गया इनिशियल डिमांड। ओके, Yes, ma'am. ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, Yes. कोई दिक्कत? No, ma'am. नो मैम। चलो आज इतना करेंगे, न्यूमेरिकल अपन कल करेंगे। ठीक है, ओके मैम। ओके, हैव ए नाइस डे बेटा, थैंक यू मैम। थैंक यू।